For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. For our meditation this morning, I have chosen from First Book of Chronicles, chapter 16, verse 23. Sing to the Lord, all the earth. Tell of his salvation from day to day. Good morning, friends. Sing to the Lord and tell of his salvation every day. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is Sing to the Lord. Here we understand David had brought in the Ark of the Covenant into the tent in Jerusalem. At that point in time, David sings a song of praise, a song of thanksgiving. For the Lord had been with him, for the Lord had taken care of him, for the Lord had given him victories, for all these things that the Lord had done. David sings before the Lord, remembering all that the Lord had done. And he also encourages all of them to sing before the Lord, to sing for the Lord, everyone, and to tell of God's salvation from day to day. What David says here is to remember every deed that God has done for us, and to praise God, and to remember them every day. Sing praises to God every day. Friends, this is what we need to understand. We need to sing to the Lord every day, remembering everything that God has done for us. What we had been, what we have gone through, how the Lord has journeyed with us, how the Lord has blessed us, how the Lord has protected us, how the Lord has given victories to us, how the Lord has listened to our prayers, how the Lord has not let us do certain things. Let us remember everything that God has done for us until now. And it is important that we remember that every day and sing praises to God. Friends, if we just look back, there is so much that God has done for us and is still doing for us. We have been unfaithful. We have been disobedient. We have not been praising God. We have not been acknowledging God in all our things that we have been successful about. In spite of all these things, the Lord has been good to us. The Lord is faithful to his promise. The Lord has never let us down. So let us sing to the Lord every day. Remember his salvific act for us. Every day he has been forgiving us. Every day he has been protecting us. Every day he has been doing great and wonderful miracles in our lives. So let us sing to the Lord every day. Be thankful to God and remember every deed and sing glory to God. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you for the blessings that we have received. We thank you for your grace and mercy. Help us to be thankful every day, every moment. In Christ's name we pray, Lord. Amen. मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला इतिहास अध्याय 16 और उसका 23वां वाक्य। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाओ। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर के लिए गीत गाएं और उसके उद्धार के बारे में प्रतिदिन बताएं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के लिए गाएं। ये उस समय की बात है जब दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम के तंबू में लेकर आया और उस वक्त दाऊद स्तुति का एक गीत गाता है, एक धन्यवाद का गीत गाता है, क्योंकि प्रभु उसके साथ बना रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी देखभाल करी और परमेश्वर ने उसे विजय दिया। और इन सारे कामों के लिए जो परमेश्वर ने दाऊद की जिंदगी में किया था, दाऊद परमेश्वर के लिए गीत गाता है और वे उन सारी बातों को याद करता है जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में किया था, और वे लोगों को भी प्रोत्साहित करता है कि वो भी परमेश्वर के लिए गीत गाएं और परमेश्वर के सामने गीत गाएं, और सभी से कहता है कि वे गीत गाएं और परमेश्वर के उद्धार के बारे में
सभी को बताएं। दाऊद हमसे यहाँ कहता है कि हम परमेश्वर के सभी कामों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में हमारे लिए किए हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करें और प्रतिदिन उन्हें याद रखें। परमेश्वर की स्तुति प्रतिदिन करें। मित्रों, ये बात हमें समझनी चाहिए कि प्रतिदिन हमें परमेश्वर के लिए गीत गाना चाहिए और हर बात को याद रखें जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में हमारे लिए किया है। हम पहले क्या थे, हम किन बातों में से होकर गुजरे और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या किया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है और परमेश्वर ने हमें बचाया है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें विजय दिया है और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है और किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें कुछ चीजें करने नहीं दी। यह महत्वपूर्ण है कि हम उन बातों को याद रखें जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अब तक किया है और इस बात का नित्य दिन स्मरण करें और परमेश्वर की स्तुति गाते रहें। मित्रों, जब हम अपने बीते हुए कल को देखते हैं तो बहुत सारे कार्य हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं और अभी भी कर रहा है। हम विश्वास योग्य नहीं थे, हम आज्ञाकारी नहीं थे, हमने परमेश्वर की स्तुति नहीं की, हमने उसे अपनी जिंदगी में नहीं स्वीकारा था और जो कार्य में हम सफल रहे उसमें हमने परमेश्वर को श्रेय नहीं दिया। इन सारे कामों के बावजूद परमेश्वर हमारे साथ भला रहा और विश्वास योग्य बना रहा। उसने अपना वादा पूरा किया और हमें कभी नहीं त्यागा। तो आइए हम प्रतिदिन उसकी स्तुति करें और याद रखें किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। वे प्रतिदिन हमें क्षमा करता है, वे प्रतिदिन हमें सुरक्षा प्रदान करता है और प्रतिदिन वो हमारी जिंदगी में महान और पराक्रमी कामों को करता है। तो इसलिए प्रतिदिन हम परमेश्वर के लिए गीत गाएं और उसे धन्यवाद दें और उसके हर कार्य को हम याद रखें और उसको महिमा देते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो हमने तेरी ओर से पाए हैं। तेरे अनुग्रह और दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम नित्य दिन तुझे धन्यवाद देते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।